Okay, Mr. Dilip, we are going to install ESXi 8.0.3. You are the Dilip. Now we are going to expand it, open with File Explorer. Okay. Now the file has opened. Now go on a vCSAUI installer Win32 and run installer as a administrator. The setup will open. Click on install. We are going install. We are not doing upgrade. Okay, we are doing installation. So introduction will be displayed once we run the setup. Next, accept the license. Next, and enter the ESXi IP 10.10.1.100 ESXi username, and password of the ESXi. This is the ESXi IP address. This is the username of ESXi, and this is the credential of the ESXi. It will show certificate warning. Yes. Then the installation will be start. This will be the setting. This will, from this name, the machine will be VM virtual machine will be created of this name. You can change it if you want. You can remove these if you wanna. Set the credential which you want to be. Next, and Tiny, we are using Tiny. As per the license, we'll choose the version small, medium, large, and extra large. We are using as we are doing practice, so we'll choose Tiny or Tiny, both are same. Okay, thin. Install on a new system. Okay, we don't have the. Okay, let's IP version already static. FQDN, did we copy? No, we didn't copy. What? Where is our DNS? I close the DNS. Wow. 199, right? So we'll provide the name and IP address is 10.10.1.199. Let's check that your record is fine or not. Okay, UP. Oh, I missed here week. You can put name and it will show 199. This means record is fine. Subnet mask 255.0.0.0. Gateway is 10.10.1.254. DNS server 10.10.1.200. No need to change other settings. It will show the entire what we choose. IP address of the ESXi, name of the VM, Tiny default, and data store mode thin. VM network static. This one vCenter name 1. This is the IP address of the DNS server. This is the IP address of the gateway. This is the subnet mask. This is the IP address of the vCenter server. Clear? And the installation has started. It will take nearby 15 minutes. Stage 1 has completed. Stage 1 पहला जो था वो कंप्लीट हो गया. इसने हमें दिया ये वाला एड्रेस HTTPS. ये वाला एड्रेस क्या है बताओ जल्दी. ये क्या है? ये हमने जो बनाया था FQDN, ये वाला बनाया था ना. रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड बनाया था, ये जो ADM बनाया था, ये वाला. ठीक है, ये इसने रजिस्टर कर दिया vCenter में. अब vCenter इस नाम से खुलेगा. अगर आप उसके बाद में ये पोर्ट लगा दोगे तो vCenter की सर्विस दिखाएगा. अगर vCenter की सर्विस कोई नहीं चल रही तो आप ऐसे खोलोगे तो vCenter की सर्विस देगा. vCenter का पोर्ट नंबर इसको बोलते हैं अप्लायंस. नहीं, इसको बोलते हैं vCenter अप्लायंस बेस होता है. क्या है, कौन सा है?
548 से बताता हूँ उसका पोर्ट नंबर कहाँ यूज किया। इफ़ यू कैन कंटिन्यू द vCenter सर्वर सेटअप एट द टाइम लॉगिंग vCenter सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस, ये मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट होता है 5480, इसको कुछ और बोलते हैं टेक्निकल नेम, विल लेट यू नो। नेक्स्ट, अब ये स्टेज 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टेज 1 कंप्लीट हुआ है, स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है। अब ये बोल रहा है सिंक्रोनाइज टाइम विद ESXi, अगर वो ESXi के टाइम vCenter और ESXi का टाइम सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो कर दो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उसका इसका अलग अलग रहेगा। SSH इनेबल नहीं करना चाहते, एज इट इज छोड़ते हैं। ये चीज़ें बाद में भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, 548 पोर्ट से, सर्विसेज कंसोल से। अब ये आ गया जो vCenter बनेगा, ठीक है, उसको किस नाम से लॉगिन करोगे। ऊपर क्या आ रहा है, vSpace.log, हमारे vCenter का नाम क्या है, टैग m डॉट, ये डोमेन का नाम पूछ रहा था, यूजर नेम ये आ गया, पासवर्ड अब डालो इसमें p@ww0rd, p@ww0rd। अच्छा वो आँख पे चला गया दिखाने के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है हमारा SSO, तो करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे डोमेन को वेरीफाई करेगा, हम vCenter के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो vCenter अब जो ब्रॉडकॉम होगा उसके पास एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इस बंदे ने आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, फिर वो आपके पास फ़ोन करने लगेंगे, भाई आप लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो, तो हम वो नहीं करना चाहते। नंबर तो डाला है, नंबर नहीं डाला, एक बता रहा हूँ, डिटेल तो सारी मांगेगा, जब ये करोगे तो डिटेल सारी आएगी, तो अभी हम इसको नहीं करना चाहते। कस्टमर एक्सपीरियंस आ रहा है ना ये, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन तो जाएगी, जैसे ही नेट पे जाएगा उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, दिस इज द सेटअप स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 में हमने क्या दिया है, हमने DNS की इन्फॉर्मेशन दी है और किस नाम से लॉगिन होगा और उसका पासवर्ड डाला है, क्लियर। लेट्स फिनिश इट। वार्निंग, ये बोल रहा है कि अब सेटअप ओके करने के बाद में फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये स्टेज 2 हो गया। अब आप उस पर चेक करना चाहोगे अपने ESXi पे, तो वहाँ पे क्या हो गया होगा, वर्चुअल मशीन एक और बन गई होगी, जिसका नाम बनेगा VMware, ये रही, क्योंकि बाकी नाम हमने उसका हटा दिया था। अब जब कभी भी vCenter सर्वर ऑन करना है, जैसे हम रात को शट डाउन करते हैं, तो vCenter ऑन करने से पहले हमारा एक्टिव डायरेक्टरी ऑन होगा। AD ऑन करने के बाद में vCenter को 20 मिनट लगती है पावर ऑन होने में, सारी सर्विस अप आने में। बहुत बड़ा टूल है, बहुत कुछ है vCenter के अंदर। vCenter खुद का